Hello friends. In the last lecture we have already discussed about the farmers issues in detail. What are the issues which are being faced by our farmers in India, and what is the solution which can be proposed or which can be used, to solve their issues, to solve the problem, or so that they can come out of of their distressful position or distressful situation. Now I already told you that I'll discuss all the issues in detail also. Presently I have taken up the issue of MSP of farmers, so that I will discuss this issue in detail and how to what solutions can be proposed, so that so as to solve this MSP issue. So first of all we will understand what is basically the issue of MSP and in detail, and how that issue can be resolved, or what alternative solutions can be provided to farmers, so as to make them come out of this situation, or to resolve this MSP crisis. So I'll be starting the lecture of issues with MSP. So first of all, there is some background of MSP which I have already discussed in the last lecture, and I am again discussing it again. The MSP, it is a promise by the government. You are growing crops, and if they are selling at good prices in the market, then good. But if the prices fall below a minimum level, then come to us and we will give you at least that much. Okay, so that is a self-explanatory statement. That means that MSP is the price which is given by the government to the farmers, which gives assurance to the farmers that they get at least that much price from selling their crops to government. So even if the market price of the crop falls below MSP, so MSP gives the assurance to farmers that they will get at least that much price. तो इसका मतलब ये है कि इतना तो उन्हें मिलेगा MSP जितना. MSP की फुल फॉर्म आपको पता ही है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो आप नोट कर लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MSP इज टू सपोर्ट द फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स एट सीवियरली लो प्राइसेस एंड टू प्रोक्यूर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि MSP का ऑब्जेक्टिव यही है कि फार्मर्स को उस डिस्ट्रेस से बचाया जा सके, ताकि जो डिस्ट्रेस उनको होगा अगर वो अपनी क्रॉप बहुत ही कम दाम में बेचेंगे, तो उससे बचाने के लिए, और साथ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, उसके लिए गवर्नमेंट क्योंकि प्रोक्यूर करती है फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स, तो for procurement of for distribution of food grains to the poor or to the needy people, government used to procure the food grains from farmers. तो वो फार्मर से जो फूड ग्रेन्स प्रोक्यूर करने के लिए जो प्राइस पे करती है, डेट इज़ MSP. तो MSP के दो ऑब्जेक्टिव हैं कि फार्मर्स को डिस्ट्रेस से बचाना और साथ में प्रोक्यूरमेंट करना फूड ग्रेन्स का फॉर PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Ideally, the market price will always remain higher than the minimum support price being provided by the government. तो ये तो होना ही चाहिए कि मार्केट प्राइस हमेशा हायर होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से होना चाहिए. तो हम कह रहे हैं आइडियली ये होना चाहिए. विद द गवर्नमेंट गारंटी, द फार्मर कैन ऑलवेज सेल एट द MSP if he cannot procure a better price elsewhere. So if the farmer, गवर्नमेंट गारंटी से फार्मर MSP में अपना क्रॉप बेच सकता है अगर उसे कहीं और बेटर प्राइस नहीं मिल रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस अगर उसे अच्छा नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है MSP से, तो MSP यूज़ करके MSP में गवर्नमेंट को बेच सकता है अपना क्रॉप. तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ MSP. नाउ MSP कैलकुलेट कैसे होता है, और MSP कैसे हमारे देश में कैलकुलेट होता है, और कैसे MSP जो है इंट्रोड्यूस होता है, या फिर कैसे MSP कौन फिक्स करता है, कौन डिसाइड करता है. तो हाउ MSP इज़ कैलकुलेटेड. तो कैलकुलेट मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया था, और मैं दोबारा बता रहा हूँ. A2 होता है, A2 + FL होता है, और C2 होता है. ये तीन अलग अलग कॉस्ट होती हैं. A2 आप समझ लीजिए
कि जितना भी फार्मर अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, इंक्लूडिंग सीड्स, जो सीड्स हैं, बीज हैं, मैन्योर हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल्स हैं, लेबर कॉस्ट जो है, फ्यूल कॉस्ट जो है, एंड इरीगेशन कॉस्ट जो है, तो दैट ऑल इंक्लूड A2 एंड FL इज़ योर वैल्यू ऑफ योर फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर। तो जनरली आप जैसे फैमिली लेबर जो भी काम करते हैं फार्मर्स अपने फील्ड के ऊपर, तो वो जो फैमिली लेबर जैसा आप कर रहे हो, आपका भाई कर रहा है या आपकी माँ कर रही है, कोई भी काम करता है, तो वो जो फैमिली लेबर होती है उसको भी काउंट करते हैं FL में उसको काउंट करते हैं, और A2 में जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। प्लस अगर आप मान लीजिए किसी और की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो A2 में वो भी काउंट करते हो आप, कि अगर कोई लीज्ड है लैंड अगर लीज पे अगर आपने ली है, तो लीज पे क्योंकि अगर आप लैंड लेते हो तो आप उसके लिए भी कुछ पेमेंट करते हो, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर A2। तो A2 में आपकी सारी कॉस्ट लगभग कवर हो जाती हैं, और FL में आपकी फैमिली लेबर की कॉस्ट देख ली जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक C2 और होता है, C2 होता है अंडर C2 द एस्टिमेटेड लैंड रेंट मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें जो आपने ज़मीन आपकी ऑन की है, उस ज़मीन का क्या रेंट मार्केट पे बैठेगा, उस लैंड रेंट को उसमें कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेटेड लैंड रेंट जो आपने ऑन की है ज़मीन। A2 में जो कि लीज पे ली गई है, A2 में वो होता है, लेकिन C2 में जो आपकी फैमिली ओन लैंड है, आपकी ओन लैंड है, उसकी क्या रेंट होगा, लैंड रेंट, वो कैलकुलेट करते हैं। प्लस आपने मान लीजिए पैसा लिया है मनी लेंडर से या बैंक से, उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, उसको काउंट करते हैं। तो C2 इज़ योर एस्टिमेटेड लैंड रेंट प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट प्लस A2 प्लस FL। तो A2 FL में अगर आप लैंड रेंट जोड़ दोगे, जो कि वो वाली लैंड जो आपकी अपनी है, प्लस द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी टेकन, तो अगर A2 FL में ये दोनों चीज़ें और जोड़ दोगे तो आपका C2 आ जाएगा। तो इंडिया में अभी तक गवर्नमेंट MSP दे रही है बेस्ड ऑन A2 प्लस FL, और डिमांड है C2 के बेसिस पे। C2 इज योर A2 प्लस FL, और A2 प्लस FL प्लस लैंड रेंट जो मैंने आपको बताया, प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो C2 पे नहीं देते, A2 प्लस FL पे देते हैं, जबकि डिमांड C2 की है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से इशू क्या हुआ है। अब MSP कैसे डिसाइड होती है, हु डिसाइड द MSP? द MSP इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ CACP। याद कर लीजिए, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। CACP एक गवर्नमेंट के अंडर में बॉडी आती है, ये कैलकुलेट करती है, गवर्नमेंट के अंडर की बॉडी है ये। अब द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCA ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टेक्स ए फाइनल डिसीजन CCA लेती है ऑन द लेवल ऑफ MSPs एंड अदर रिकमेंडेशंस मेड बाय CACP रिकमेंड गवर्नमेंट को करती है, और गवर्नमेंट में CCA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि CACP डिसीजन नहीं लेती, CACP केवल रिकमेंड करती है, डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है। और एक मेजर पॉइंट है इसमें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर डेजिग्नेटेड स्टेट एजेंसीज वुड कंटिन्यू टू प्रोवाइड प्राइस सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द केस ऑफ सीरियल्स इंक्लूडिंग न्यूट्री सीरियल्स। तो FCI और अदर डेजिग्नेटेड स्टेट एजेंसीज प्रोक्यूर करती हैं सीरियल्स को, सीरियल ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब FCI आपका प्रोक्यूरमेंट करती है। इसके अलावा नेफेड जो होता है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड, FCI, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम SFAC and other designated central agencies would continue to undertake procurement of pulses and oilseeds। तो pulses और oilseeds का procurement नेफेड करती है, FCI भी करती है, बट FCI कम करती है, नेफेड ज़्यादा करती है। SFAC करती है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, और कुछ अदर डेजिग्नेटेड सेंट्रल एजेंसी जो इनका प्रोक्यूरमेंट करती है।
Cotton Corporation of India will be the central nodal agency for undertaking price support operations for cotton. और CCI प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस कॉटन के लिए करती है। तो CCI का रोल होता है कि कॉटन के बेसिस पे वो CACP को रिकमेंड करती है कि क्या होना चाहिए इसका MSP, और CACP फिर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सामने रखती है जो फाइनल डिसीजन लेती है इसके ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं MSP रिलेटेड। अब व्हाट आर द इश्यूज विद MSP? इश्यूज क्या है MSP में? इश्यूज आर, द फर्स्ट इशू इज इन इट्स डेफिनेशन इटसेल्फ, जो मैंने आपको बताया। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट MSP, द गवर्नमेंट यूजेज A2 plus FL cost और द एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट एंड द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। The criticism of A2 plus FL is that it does not cover all cost and that a more representative measure is C2, जिसके अंदर मैंने बताया आपका लैंड रेंट हो गया जो कि आपका फैमिली ओन्ड लैंड है, प्लस आपका इंटरेस्ट जो आपको मनी जो आपने पे कर रहे हो, विच ऑल्सो इंक्लूड्स इम्प्यूटेड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ओन्ड लैंड एंड कैपिटल, जो मैंने आपको बोला। एज इट डज नॉट कवर ऑल क्रॉप्स इट हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव। एक इशू ये है कि इफेक्टिव इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये सभी क्रॉप्स को कवर नहीं करता। One of the major problem with this MSP is that it does not work for all crops. ये सभी क्रॉप्स के लिए वर्क नहीं कर रहा है, जो मैंने अभी बताया। It works where the government has machinery for procurement and at to in specific states. The PDS system has ensured that there is active procurement by FCI for wheat and rice, which is stored according to the buffer stock norms and also used for distribution. तो बेसिकली क्या है ना, इसमें इशू एक ये भी है कि भाई FCI जो प्रोक्यूर करता है और मेजरली राइस एंड व्हीट प्रोक्यूरमेंट होता है, तो इसमें तो फिर भी फार्मर्स को सपोर्ट मिल जाता है, बट बाकी सब क्रॉप्स में बहुत प्रोक्यूरमेंट स्टेटस बहुत बैड है गवर्नमेंट का। बहुत जगह प्रोक्यूरमेंट होता ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत छोटे छोटे इलाकों में प्रोक्यूरमेंट ही नहीं है। इसके अलावा प्रोक्यूरमेंट नहीं है, प्लस उसके अलावा प्रोक्यूरमेंट व्हीट और राइस का ज़्यादा है और क्रॉप्स का नहीं है। और FCI भी सब जगह अवेलेबल नहीं है, उनकी एजेंसीज भी अवेलेबल नहीं है जो प्रोक्यूरमेंट करती हो। तो ये सब बहुत इशू है कि गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है फॉर प्रोक्यूरमेंट। ऑल फार्मर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू दी गवर्नमेंट्स MSP। तो फार्मर्स के पास सभी फार्मर्स के पास एक्सेस नहीं है MSP का, गवर्नमेंट के MSP का। क्यों नहीं है? आप मान लीजिए 6% फार्मर्स के पास है केवल एक्सेस। जो हमारे देश में केवल 6% फार्मर्स ऐसे हैं जो MSP के ऊपर क्रॉप बेचते हैं, बाकी 94% नहीं बेचते हैं। फर्दर, इवन इन केस ऑफ पैडी में, राइस में, द प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशंस वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे आर वेरी गुड इन सम पार्ट्स एंड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन अदर पार्ट्स। तो ये एक इशू है कि प्रोक्यूरमेंट बहुत खराब है। ऑल्सो द MSP मैकेनिज्म हैज लेड टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैडी एंड व्हीट। ठीक है, पैडी एंड व्हीट का ओवर प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा, एज इट इज़ एन ओपन एंडेड स्कीम, देर आर नो लिमिट्स टू प्रोक्यूरमेंट, which creates a different set of problems for the government. However, for the other crops, there is no systematic procurement, which means that while MSPs are announced, they are not credible if the government agencies are not there to procure the crop and the farmer has to sell at the market prices. तो बेसिकली क्या है ना कि फार्मर को बेचना पड़ेगा मार्केट प्राइसेस पे, क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है प्रोक्यूरमेंट का क्रॉप्स को, डिफरेंट अदर क्रॉप्स को, जैसे पल्सिस का हो गया, ऑयल सीड्स का हो गया, आपका ज्वार, बाजरा, कॉटन, आपका मेज, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंड नट, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर MSP अनाउंस होते हैं, बट प्रोक्यूरमेंट ना होने की वजह से प्रोक्यूरमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो पाता। इसके अलावा, नाउ वाइल कोऑपरेटिव्स लाइक नेफेड डू गेट इन्वॉल्व विद प्रोक्यूरमेंट एट टाइम्स, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। जैसे मैंने आपको बताया, नेफेड ऑयल सीड्स और पल्सिस का प्रोक्यूरमेंट करता है। इफ देयर इज नो और लिमिटेड प्रोक्यूरमेंट, देन द MSP एक्चुअली सेंड्स इनकरेक्ट सिग्नल्स टू द फार्मर्स। As these announcements are made before the seeds are sown, farmers take sowing decisions based on these prices. तो बेसिकली क्या है ना कि आपने MSP अनाउंस कर दिया, फार्मर ने सोचा MSP तो अच्छा अनाउंस हुआ है पहले ही, इस बार मैं उगा लेता हूँ। अब पता लगा आपने उगा दिया क्रॉप और उसके बाद आपकी क्रॉप बिकी नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है MSP पे ख़रीदने के लिए, गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, कोई आपके पास FCI का गोडाउन नहीं है, कोई आपके पास जो है मंडी अवेलेबल नहीं है आसपास। तो मतलब बहुत सारे इशूज़ हैं जिसकी वजह से आपकी क्रॉप ख़राब होने का आपको डर रहता है। तो आपको मार्केट प्राइस पे बेचना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली कम होती है MSP से। तो इस वजह से फार्मर को बहुत घाटा होता है, इवन इसका जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है क्रॉप के ऊपर वो भी नहीं, लागत भी वसूल नहीं कर पाता वो। तो एक बहुत बड़ा इशू है। व्हेन द प्राइस लुक्स अट्रैक्टिव,
there would be a tendency for group think to take over and the acreage increases. Obviously, जो मैंने आपको बोला कि फार्मर ज़्यादा उगाने की कोशिश करता है क्योंकि प्राइस अच्छा लगता है उसे एमएसपी का. दिस लेट्स टू हायर सप्लाई. इससे क्या होता है, हायर सप्लाईज हो जाते हैं उस क्रॉप के. एंड इन द एब्सेंस ऑफ ए क्रेडिबल प्रोक्योरमेंट सिस्टम लेट्स टू प्राइसेस कमिंग डाउन, thus impacting the income of farmers, which can snowball into indebtedness at times and other associated issues like loan waivers. तो वही मैंने बोला, प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तो वो जो उसने पैसा उठाया है मनी लेंडर से कहीं से भी, वो चुकाने की स्थिति में नहीं होता और वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता. तो एक बहुत बड़ा एमएसपी का इशू है जिसकी वजह से ये सारे इशूज जो सुसाइड वाले इशूज़ है, एमएसपी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो कि इन जैसे कह रहे हैं ना, इनक्रेडिबल प्रोक्योरमेंट सिस्टम है. उसके अलावा given the fact that the procurement of paddy and wheat is better in comparison to other crops for which an MSP is announced, तो paddy and wheat का हम कह रहे हैं कि already better है. It encourages farmers to grow paddy and wheat instead of other crops. As the economic survey points out, public procurement at the MSP has public procurement at the MSP has disproportionately focused on wheat, rice and sugar cane, and perhaps even at the expense of other crops such as pulses and oilseeds. So this point I have already discussed that pulses और oilseeds और other crops के expense पे encouragement मिला है पैडी एंड wheat procurement growing में. तो क्योंकि प्रोक्यूरमेंट जो होता है ना पैडी और, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है ना, पीडीएस जनरली क्या होता है ना, एफसीआई प्रोक्यूरमेंट करता है या मंडी में प्रोक्यूरमेंट होता है इनका एमएसपी में. तो क्या होता है कि एफसीआई जब प्रोक्यूर करता है तो वो पीडीएस के लिए करता है, आपको मालूम है, पीडीएस सिस्टम के लिए. तो पीडीएस में क्या है ना, क्योंकि वीट एंड राइस ही है मेजरली जो कि एफसीआई सेल करता है, तो ये प्रोक्यूरमेंट जो गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है ना एमएसपी में, ये प्रॉपरली है नहीं. केवल एफसीआई क्योंकि प्रोक्यूर करता है तो वहाँ पे तो ठीक है क्योंकि एफसीआई प्रोक्यूर कर लेता है, बाकी एजेंसीज प्रॉपरली प्रोक्यूर करती नहीं है. और इवन क्या होता है ना, मंडी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं. मंडी में क्या होता है, जब फार्मर जाता है मंडी में अपनी क्रॉप सेल करने, तो वहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं मिडिल मैन है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, जो भी आपको पता है एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, वो मंडीज़ में आपका मंडीज़ उसका एक पार्ट है. तो एपीएमसी क्या करती है ना, एपीएमसी में जाके आप सेल करते हो, यानी कि मंडी में जाके आप सेल करते हो अपनी क्रॉप. तो वहाँ पे गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड जो भी गवर्नमेंट की जो भी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एपीएमसी में रजिस्टर्ड हैं, वो प्रोक्यूर करेंगे, बट वो डायरेक्टली प्रोक्यूर नहीं करते. प्रोक्यूरमेंट करते हैं मिडिल मैन क्या करते हैं, अपने हिसाब से चार्ज करते हैं रेट. वहाँ पे आगे आपका रेट कम चार्ज करते हैं. वहाँ पे क्या करते हैं ना, आपको कोई भी क्रॉप का देंगे 2 रुपये, पता लगा 10 का बिकना है 2 रुपये देंगे. आगे ट्रेडर को 4 रुपये में बेचते हैं. अब जो एपीएमसी में ट्रेडर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो 4 रुपये की क्रॉप को बेचते हैं अब आगे 15 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में. अब फार्मर को नहीं मिला, बट पीछे से फार्मर को नहीं मिलता पैसा. 10 रुपये का फार्मर को पैसा नहीं मिला, फार्मर को केवल मिला 2 रुपये. बट आपके पास आया तो आपके पास तो 15 रुपये में आया. क्यों? आपको लगा यार फार्मर, ये तो क्रॉप बड़ा महंगा है, फार्मर को तो बहुत पैसा मिल रहा होगा, बट फार्मर को नहीं मिलता. मंडी में जो एक कार्टेल है ट्रेडर्स का एंड मिडिल मैन का, तो ये बहुत मतलब एक कहेंगे बहुत प्रॉब्लमेटिक एक बात है कि मंडी में ये कार्टेल है इनका, इसकी वजह से फार्मर को पैसा नहीं मिलता और फार्मर मंडी में नहीं बेच पाता प्रॉपर प्राइस पे. और एफसीआई केवल वीट एंड राइस करता है, तो इसकी वजह से बाकी क्रॉप्स इग्नोर्ड है. तो यही एक प्रॉब्लम है जो मैंने इस पॉइंट में लिखा है. ये एमएसपी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोक्यूरमेंट एमएसपी के ऊपर बहुत कम अवेलेबल है, केवल पैडी और वीट का है. इसके अलावा फॉर राइस ऑफ ऑल द राइस प्रोड्यूस इन द कंट्री द गवर्नमेंट बाइज 1/3. गवर्नमेंट मैं कह रहा हूँ 1/3 खरीदती है. वीट में गवर्नमेंट 1/4 खरीदती है, 25%, उसमें 33% खरीदती है. और बाजरा का 0.2% खरीदती है केवल. सो इन ऑल वेज फार्मर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. द एमएसपी एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर. एमएसपी पेपर पे ही एग्जिस्ट करता है. द फार्मर कम्स रेडी विद हिज क्रॉप एंड आस्क्स द गवर्नमेंट टू बाय इट. द गवर्नमेंट सेज द अरेंजमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन योर डिस्ट्रिक्ट. द सेंटर विल ओपन 15 days later here और इट क्लोज 10 days ago एंड यू आर लेट और यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड पेपर वर्क. तो बहुत सारे इशूज़ हैं जिसकी वजह से फार्मर एमएसपी पे नहीं बेच पाता. तो बेसिकली मैंने बताया फार्मर को एमएसपी पे अगर बेचना है तो उसे या तो गोडाउन एफसीआई पे बेचना होगा या फिर मंडी में जाके गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड जो ट्रेडर्स हैं उनको बेचना होगा, जो कि एपीएमसी में रजिस्टर्ड होते हैं.
बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं आपको एपीएमसी के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे एपीएमसी को में लेकर इश्यूज़ है, जिसमें अमेंडमेंट भी किया गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली। एमएसपी के ऊपर एक लास्ट इशू है, दैट इज़ टुडे मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन। आपको मालूम है सब्सिडाइज फूड ग्रेन गवर्नमेंट पीडीएस के थ्रू देती है। फॉर एग्जाम्पल 6 किलोग्राम ऑफ राइस पर पर्सन एट ₹1 इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। Hence, 60% of the population does not buy from the free market. If the demand for food grain in the free market is reduced by 60%, then the prices collapse to a level much lower than the production cost. की वजह से क्या होता है ना, मार्केट प्राइस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो 60% पॉपुलेशन है वो खरीदती ही नहीं मार्केट से। Then the government intervenes and buys for a price which is barely equal to the production cost, leaving the farmer with barely enough to sustain. तो ये भी है कि MSPs भी कम है। एक तो एमएसपी नहीं मिलता, और एमएसपी मिलता भी है तो वो भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि फार्मर को इतना कम प्राइस मार्केट मिलता है कि गवर्नमेंट भी इसलिए उसका एक्सप्लॉयटेशन करती है, एमएसपी कम अनाउंस करती है। दिस सिस्टम इज अनविटिंगली हेल्पिंग द रिच बाय लोअरिंग फ्री मार्केट। बेसिकली ये रिच को, मतलब कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है कि उसको क्रॉप सस्ते में खाने को मिल रही है, फूड ग्रेन्स या फूड, बट फार्मर्स को पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि फार्मर्स का कम से कम उनका जो एक्सपेंडिचर है और उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उनको कुछ बेनिफिट, कुछ बोनस करके मिल जाए, कुछ प्रॉफिट मिल जाए, बट वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कवर नहीं कर पाते। तो ये सारे इश्यूज़ हैं एमएसपी के साथ जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब सॉल्यूशंस क्या होंगे एमएसपी के, जो कि हम प्रपोज कर रहे हैं। द मेन टेक अवे इज दैट द एमएसपी सिस्टम नीड्स टू बी रिविजिटेड। ठीक है, टू बिगिन विद इट शुड बी अनाउंस ओनली व्हेन देयर इज अ बैक एंड प्रोक्यूरमेंट। तो प्रोक्यूरमेंट होगा तभी अनाउंस होना चाहिए, तभी ये रेलिवेंट है। ऑल्सो इट शुड बी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड नॉट कन्फाइंड टू दोज वेयर द एफसीआई हैज द रिक्वेस्टेड मशीनरी। वही मैंने बोला कि जहाँ पे एफसीआई की मशीनरी है वहीं पे ही नहीं होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। एक्सेस इज ऑफ इम्पोर्टेंस and FCI should be working with state agencies to ensure that even for paddy the market price should never go below the MSP। तो बेसिकली गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि मार्केट प्राइस को कंट्रोल करे, ताकि मार्केट प्राइस MSP से नीचे कभी ना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोक्यूरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को कम से कम एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करना होगा। तो इसके ऊपर हम डिटेल में मैंने एक पॉइंट और दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंडली द फार्मर शुड गेट ए लीगल गारंटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही शुड गेट ए लीगल गारंटी जो उसे नहीं मिलती है। द कमीशन फॉर CACP विच डिटरमाइंस द प्राइस इज अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज रन बाय द येस मैन ऑफ द रूलिंग पार्टी। दिस शुड बी मेड एन इंडिपेंडेंट अकाउंटेबल कमीशन हुज रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। बेसिकली क्या होता है ना, अभी तक क्या हुआ है, हमने अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो CACP जो भी रिकमेंड करती है ना वो बाइंडिंग नहीं होती। तो क्या होता है, CACP ने मान लीजिए 100 रुपये का रिकमेंड किया कि 100 रुपीज़ इसकी MSP सेट कर दो, तो ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट कमेटी 100 रुपीज़ एक्सेप्ट कर ले। वो क्या करता है ना, 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ अनाउंस कर देता है। तो CACP हम कह रहे हैं कि CACP की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इट शुड बी मेड एन इंडिपेंडेंट अकाउंटेबल कमीशन। फार्मर शुड हैव द लीगल राइट होना चाहिए टू गेट एटलीस्ट MSP फॉर देयर प्रोड्यूस। दे शुड हैव द राइट टू गो टू कोर्ट टू फाइल ए केस एंड गेट कंपनसेशन इफ दे डू नॉट गेट द MSP। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक और सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट की ऑलरेडी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री आशा स्कीम, विच इज़ अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये 3 वेज से इंश्योर कर रहा है MSP गवर्नमेंट को देने फार्मर्स को मिले। एक तो यही है कि भाई गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट प्रॉपरली हो। दूसरा प्राइस सपोर्ट, इनकम सपोर्ट उनको दिया जाए। इनकम सपोर्ट जैसे 6,000 रुपये अभी गवर्नमेंट दे रही है, विच इज़ एक्चुअली टू लेस। 18,000 की डिमांड थी इन अ ईयर, बट 6,000 मिल रहा है गवर्नमेंट जो दे रही है फार्मर्स को। और थर्ड कि प्राइवेट प्लेयर को आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो कम से कम MSP पे प्रोक्यूर करें ग्रेन्स फार्मर से। अगर वो करेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा अगर मार्केट प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि वो मार्केट प्राइस पे करते हैं जो कि ऑलरेडी जनरली कम होता है। तो मार्केट प्राइस अगर कम होता है तो कम से कम MSP पे प्रोक्यूर करे, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे। उसके अलावा मंडीज जो है ना हमारे देश में केवल 7,000 है, और प्रपोज है 42,000 कम से कम मंडी होनी चाहिए अगर 5 किलोमीटर रेडियस में आपको देनी है। फार्मर को मंडी देनी चाहिए 5 किलोमीटर के अंदर में। वेयर हाउसिंग एंड गोडाउन नहीं है। MSP केवल 6%, मैं बताया आपको, फार्मर केवल 6% है जो कि MSP का लाभ उठा रहे हैं। तो मंडीज आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP, जैसे मैंने आपको बोला
कि मंडीज़ में प्रोक्योरमेंट होता है, बट मंडीज़ ही नहीं है तो कहाँ पे फार्मर बेचेगा, और मंडीज़ में बेचता है तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके ऊपर हम डिटेल में अगले एक लेक्चर में बनाऊंगा, मंडियों के ऊपर डिटेल में एक बार बात करेंगे इसके ऊपर। इज़ देयर एन ऑप्शन टू एमएसपी? अब इसमें हम बात करें कि क्या एमएसपी के अलावा कुछ किया जा सकता है, कि एमएसपी हटा के कुछ और किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। अब इसको आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए वेल डेवलप्ड फ्यूचर मार्केट फॉर द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज ऑल्सो ए गुड सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म टू एंश्योर रीजनेबल प्रॉफिट्स फॉर द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स ऑन ए साइंटिफिकली ग्रेजुएटेड स्केल। अब यहाँ पे पढ़िए, इमेजिन इफ द फ्यूचर प्राइस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट इज ऑलरेडी नोन टू द फार्मर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग। इसमें क्या है ना, बेसिकली फ्यूचर मार्केट होता है, जैसा आप जानते हैं क्या होता है, ये फ्यूचर मार्केट ऑलरेडी हमारे देश में है। ये इसमें क्या होता है ना, जैसे ये NCDEX है, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज है, तो ये एक्सचेंज इज़ अ गवर्नमेंट एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए। तो ये जो है NCDEX, इसमें क्या होता है ना, फार्मर क्या होता है, अपनी कमोडिटीज़ को ट्रेड करता है। तो ट्रेड जब करता है फार्मर अपनी कमोडिटीज़ को, तो वहाँ पे जैसे आप शेयर मार्केट आप समझते हैं, शेयर मार्केट में तो आप कोई भी एक शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो आपको पे करना पड़ता है। मान लीजिए आपको 5,000 रुपये का शेयर है, तो आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आपको फ़ायदा होगा, वो प्रॉफिट आपके खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन NCDEX में क्या होता है ना, आपको केवल बोली लगानी है अपनी क्रॉप की, कि भाई मैं ये क्रॉप बेचूंगा 1,000 रुपये में, फॉर एग्जाम्पल पर किलो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट ए वेग एग्जाम्पल। 1,000 रुपये में मैं 1 किलो का क्रॉप बेचूंगा। आपने बोली लगा दी, ठीक है, आपने बोली लगा दी, खत्म हो गया, बोली लगा के आप बैठ गए। अब क्या होता है, लोग वहाँ पे आएंगे, लोग कहेंगे मैं इसके 1,000 नहीं, मैं 1,050 दूंगा। कोई कहेगा मैं 1,100 दूंगा, कोई कह रहा है मैं 1,200 दूंगा, ठीक है। तो इसमें ना एक डेट डिसाइड हो जाती है किसी भी क्रॉप की। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन की डिसाइड हो गई, तो सोयाबीन का ये मान लीजिए सीज़न चल रहा है, तो सीज़न में पहले से ही इस मार्केट में डिसाइड हो जाता है, जो भी इसके अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर पैसा, वो क्या करते हैं ना, फार्मर से कोलैबोरेशन कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं फार्मर से कि आप क्या कीजिए, आप 1,000 रुपये हम आपको पे करेंगे, आप क्रॉप उगा लीजिए ये सोयाबीन की, हम 1,000 रुपये आपको देंगे ही देंगे। अब इसमें क्या होता है ना, एक तो श्योरिटी होगी फार्मर को कि उसे 1,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उसका एक उसका जो है ना वो हो गया, आपस में एक फ्यूचर कोलैबोरेशन हो गया, जो कि फ्यूचर में उसको पे होगा। अब उसने मान लीजिए क्रॉप उगा ली, तो 1,000 रुपये उसे उस जो बंदा है उसे देने पड़ेंगे। अब बंदे को क्या फ़ायदा है, अब बंदा क्या करेगा ना, बोली जब वो जो क्रॉप है उसकी बोली लग जाएगी उसके अंदर, मार्केट के अंदर, तो अब कोई 1,100 का बोलेगा, कोई 1,200 बोलेगा, कोई 1,300 बोलेगा। अब क्या होगा, उससे उसे फ़ायदा हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो क्रॉप 1,100 की बेच देगा और 100 रुपये उसको बेनिफिट मिल जाए, इससे वो पैसा कमा सकता है। तो ये है, इससे लोग कोलैबोरेशन करते हैं फार्मर से। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट मतलब पहले से ही फार्मर के साथ कोलैबोरेशन हो गई, फ्यूचर में क्या रेट मिलेगा फार्मर को। तो यही लिखा है, इमेजिन इफ द फ्यूचर प्राइस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट इज नोन टू द फार्मर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग, दे कैन एडजस्ट देयर सोइंग प्लान्स, देयर बाई कंट्रोलिंग ओवर प्रोडक्शन एंड द रिजल्टेंट प्राइस कोलैप्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने बोला कि मैं आपसे 10 किलो खरीदूंगा और 1,000 रुपये पर किलो बेचूंगा, खरीदूंगा। तो फार्मर केवल 10 किलो ही उगाता है, फार्मर उसी हिसाब से प्रोडक्शन अपना कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरा जो है ना केवल 10 किलो ही का कोलैबोरेशन हुआ है मेरा, तो उसी हिसाब से अपना कंट्रोल करता है अपना प्रोडक्शन। इससे प्राइस भी कंट्रोल होता है मार्केट में। हैंस द फ्यूचर मार्केट्स कैन प्रूव टू बी ए good tool to help the farmers. This method is effectively deployed in many countries. Moderating the overproduction also reduce the stress on the godowns, granaries and storage which are in short supply. ठीक है ना भाई, इससे ये फ़ायदा होगा कि भाई फार्मर्स अपनी सप्लाई भी कंट्रोल करेंगे, प्राइस भी उससे सप्लाई कंट्रोल होगी तो प्राइस भी प्रॉपर उसे मिलेगा। तो वो ओपन मार्केट में बेच सकता है या फिर बोली लगवा सकता है, किसी कोलैबोरेटर को बेचेगा ही बेचेगा, और फिर कोलैबोरेटर को भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो उसे जो है ना पैसा अच्छा मिल जाएगा, कि प्राइस उसको अच्छा मिलेगा मार्केट में, क्योंकि जब सप्लाई कंट्रोल होगी तो प्राइस अच्छा मिलेगा। सो ए वेल डेवलप्ड फ्यूचर मार्केट अक्रॉस ऑल क्रॉप्स एंड एंश्योर दैट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन फोर्स ऑल द टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट टाइम। वही मैंने बोला कि फार्मर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, 10 किलो की एक बंदे के साथ कर लेगा, 10 किलो का किसी के साथ। This will help in making better sowing decisions on the crop as well as quantum that is sown.
कितना कितना बोना है और क्या कौन सा क्रॉप बोना है, उसे बेटर वो डिसीजन ले पाएगा. सी दिस इज सिमिलर टू एमएसपी बट डिलीवर्ड थ्रू द मार्केट विच इज़ मोर एफिशिएंट एंड कैन कवर ऑल दी क्रॉप्स. ये बेटर है एक सोल्यूशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फ्यूचर मार्केट. इसके अलावा फर्दर मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर कमोडिटी प्राइसेस कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्टिंग द प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटी. तो मैथमेटिकल मॉडलिंग भी गवर्नमेंट को ऐसे ही मैथमेटिकल मॉडलिंग एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट अपॉइंट करने चाहिए जो कि किसी भी क्रॉप की मैथमेटिकल मॉडलिंग करें बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स और उसका प्राइस प्रेडिक्ट करें और फार्मर को बताएं, किसानों को बताया जाए, उनको हेल्प किया जाए कि उनको इतना प्राइस तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, इवन अगर एमएसपी अनाउंस नहीं भी हो रहा है तो भी. और एज ए कंट्री वी हैव स्ट्रांगली एस्टैब्लिश दैट वी आर मोर देन कैपेबल ऑफ पुटिंग रॉकेट्स इन स्पेस यूजिंग द सैटेलाइट डेटा यूज करके we can do agricultural planning by assimilating data and predicting the quantum of output and the productivity per unit of land. This will also help us predict the price of the respective commodity. तो हम जो सैटेलाइट डेटा गवर्नमेंट जो अवेलेबल कराती है, ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट सैटेलाइट डेटा के थ्रू गवर्नमेंट फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और फार्मर्स उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी क्रॉप इस बार उगानी चाहिए, वेदर कैसा रहेगा 2 महीना 3 महीना आने वाले टाइम में, और लैंड की फर्टिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से वो अपना आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. उसके हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं कि कितनी क्रॉप उगानी है और कौन सी क्रॉप उगानी है. दिस डेटा नीड्स टू बी सुटेबली ग्राउंड प्रूफ्ड एंड सुटेबली कैलिब्रेटेड. मतलब बेसिकली ये सब सॉल्यूशंस हैं ताकि फार्मर कंट्रोल कर पाए अपनी क्रॉप्स का प्रोडक्शन और ताकि उसे अच्छा मार्केट प्राइस जो है एक अच्छा मिले उसको, और अगर एमएसपी अगर उसे नहीं मिल रही है तो कम से कम वो मार्केट में एक अच्छे दाम पे बेच पाए. तो कंक्लूजन में कुछ ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, बट यही लिखा है कि जो स्वामीनाथन कमीशन ने ऑलरेडी जो फार्मर डिस्ट्रेस और प्राइसिंग फार्मर सुसाइड्स जो उसने फोकस किया था और उसने रिपोर्ट बताई थी और रिकमेंड किया था कि एक नेशनल होलिस्टिक पॉलिसी बननी चाहिए फार्मर्स के लिए. द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन एनकम्पास इशूज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सोशल सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट्स. ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मर के पास रिसोर्सेज की कमी है और उनको सोशल सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट्स भी नहीं मिलते हैं, सिक्योरिटी नहीं है उनको. सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे उनकी क्रॉप की इंश्योरेंस या उनकी खुद की इंश्योरेंस, या कहीं आग लग जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलना चाहिए. उसके अलावा उनको जो है फ्यूचर बेनिफिट्स होने चाहिए, जैसे उनको गवर्नमेंट फंड दे या कुछ ऐसा कुछ हेल्प करे, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है फॉर एम्प्लॉयज़ सर्विस में जो होते हैं लोग, इसी तरीके से उनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. हिज सजेस्टेड एमएसपी फॉर्मूला ऑफ एटलीस्ट 50%, उन्होंने ऑलरेडी 50% सजेस्ट किया था, मोर देन दी वेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो 50% से ज़्यादा प्लस C2. तो उन्होंने किया था कि एमएसपी होना चाहिए 50% प्लस C2 होना चाहिए. देयर इज़ अ नीड टू क्लैरिफाई व्हाट क्वालिफाइज एक्चुअल. तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल कॉस्ट जो होनी चाहिए वो C2 होनी चाहिए, ना कि A2 प्लस FL. तो C2 होती है आपकी A2 प्लस FL प्लस रेंट ऑन आपकी ओन लैंड प्लस आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो. ऑफरिंग दिस इज़ मच मोर ऑनरेबल. ये ऑफर अगर आप करोगे तो इज़ मच मोर ऑनरेबल टू दी फार्मर्स देन ऑफरिंग लोन वेवर्स. तो आप समझ रहे हैं कि ये सब इश्यूज़ हैं फार्मर्स के साथ जिनकी वजह से ये फार्मर सुसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं. तो एमएसपी वाला जो इशू है गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए. ये सारे इश्यूज़ हैं, ये सारे सॉल्यूशन जो हमने प्रपोज किए हैं उनको एमएसपी जो है लीगल कर दी जाए, उनको जो है एमएसपी मिलनी चाहिए, मंडीज़ की तादाद बढ़ाई जाए, एफसीआई की प्रोक्यूरमेंट को ऑप्टिमम करना चाहिए, उसको रिलायबल करना चाहिए, मंडी एफसीआईज़ के गोडाउन्स और ग्रेनरीज को बढ़ाना चाहिए, एफसीआईज़ को अपॉइंट करना चाहिए. फार्मर की जब क्रॉप तैयार हो वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज तैयार हों प्रोक्यूरमेंट के लिए, उनको परेशान ना किया जाए. बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि प्रपोज किए जा रहे हैं. फ्यूचर मार्केट का सॉल्यूशन है, फार्मर को फ्यूचर मार्केट के बारे में बताया जाए, फार्मर फ्यूचर मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा देश में बढ़ावा दिया जाए ताकि फार्मर फ्यूचर मार्केट में के हिसाब से में इन्वेस्ट करे, फ्यूचर मार्केट में क्रॉप बेचे, उसके हिसाब से फ्यूचर मार्केट के हिसाब से फार्मर क्रॉप का रेट पहले फिक्स हो जाए और फार्मर उस वहीं बेचे अपना क्रॉप. उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो करे, क्या नाम है इसका,
एमएसपी पे प्रोक्यूर करे और एमएसपी को फिक्स करने के लिए 50% प्लस C2 कॉस्ट को के हिसाब से डिसाइड करे। और मंडीज़ को वो करना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मंडीज़ में क्या इशू और गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या क्या और करना चाहिए मंडीज़ के ऊपर। ठीक है, तो विद दिस आई एंड माय लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसके ऊपर लाइक दबाएं, लाइक बटन दबाएं और शेयर करें और काइंडली बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।